Today's lecture is on variation in demand and changes in demand. इकोनॉमिक्स में वेरिएशन इन डिमांड किसको बोलते हैं और चेंजेस इन डिमांड किसको बोलते हैं उसके बारे में आज का लेक्चर है. There are two type of variation: expansion of demand and contraction of demand. And changes in demand two type है: increase in demand and decrease in demand. ध्यान देना, very important question है. There may be short note, individual short note आ सकता है. There may be distinguish between any two expansion, contraction, distinguish between increase, decrease, distinguish between expansion of demand and increase in demand. किसी के भी बीच में distinguish भी आ सकता है और there may be short notes. Okay, तो जरा ध्यान से समझना. Now हम लोग ने previous lecture में डिस्कस किया था, शायद याद रहेगा आपको. What are the factors affecting market demand? Determinants of demand. मार्केट में डिमांड चेंज होने के कौन कौन से फैक्टर्स है? All of you know that price of the commodity is the very important factor which affect market demand, because generally consumer buy less quantity at a higher price of that commodity and more quantity at a lower price. So price of commodity is first factor which determine market demand, and there are many factors affecting market demand जो भी हमने previous lecture में discuss किया था. What are those factors? Income of the consumer, size of population, price of substitute goods, price of complementary goods. There may be nature of product also determine market demand. Demand of some commodity depend upon expectation about future change in price. Then demand of some commodities depend upon advertisement, taste, habit and fashion, taxation policy, government का taxation policy, and other factor like climatic conditions and technique. ये सब हमने डिस्कस किया था. There are many factors determining market demand. Okay, ये आपको सबको मालूम है. आज के लेक्चर में मैं क्या बोल रहा हूँ? If demand, जरा ध्यान से देखना, varies because of price of commodity, then that is called variation in demand. That means rise or fall in demand because of price alone, then that type of rise or fall is called variation in demand. So what do you mean by variation in demand? That means rise or fall in demand because of change in price alone and other factors remain constant, that is called variation in demand. मैं ये बात को साबित करके बताता हूँ. So there are two type of variation: expansion of demand and contraction of demand. Now all of you know that there is a generally inverse relationship between price and demand. Higher the price, lower is the quantity demand, and lower the price, higher is the quantity demand. ये concept आपको मालूम है. तो there is a inverse relationship between price and demand. ऐसा आपने law of demand में सीखा भी है. On that basis, मैं यहाँ पे आपको how to remember meaning, उसके लिए मैं PED लिखता हूँ. देख लो. ओके, प्राइस डिमांड ये याद रखने का तरीका है जिससे कि ये डेफिनेशन जल्दी समझ जाता है. प्राइस डिमांड लिखता हूँ. अभी मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूँ. What do you mean by expansion of demand? इकोनॉमिक्स में expansion of demand कब बोलते हैं और increase in demand कब बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Expansion of demand, okay, that means definition क्या बोल रहा है? Rising demand because of fall in price alone, that is called expansion of demand. When demand of a commodity rise because of fall in price alone, अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस कम होने के कारण अगर उस प्रोडक्ट को हम ज्यादा खरीदते हैं और दूसरे फैक्टर्स remain constant, then that is called expansion of demand. So what is definition of expansion of demand? Rising demand because of falling price alone and other factors remain constant. What do you mean by other factors? That is no change in income, no change in size of population, and whatever the other factors जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो constant रहना चाहिए. Only क्या change होना चाहिए? Price. Then that is called expansion of demand. So what is the definition of expansion of demand? Rising demand of a commodity due to fall in price of that particular commodity is called expansion of demand. And reverse definition contraction है. Contraction of demand means falling demand because of rise in price alone and other factor remain constant. उल्टा definition है. Okay, that is called contraction of demand. तो इधर मैंने क्या बोला? Rise in demand because of falling price alone, other factors remain constant. इधर क्या बोल रहा हूँ? Falling demand because of rising price alone, that is called contraction demand.
दिस इज बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम में किस तरह ड्रॉ कर रहा हूं, सीधे डिस्टिंग्विश पूछेंगे तो भी आपको डायग्राम बनाने का है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट on the x axis we take quantity demand, on the y axis we take price of the product। ओके, आपको सबको मालूम है लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा है हाउ टू ड्रॉ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, व्हाट इज डिमांड कर्व? जब भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो आपको डेफिनेशन हमेशा याद आना चाहिए, व्हाट इज डिमांड कर्व। ये जो कर्व बनता है उसको डिमांड कर्व बोलते हैं, बट डेफिनेशन क्या है? डिमांड कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ऐसा आपको इमीडिएट आना चाहिए आंसर। डिमांड कर्व बनाने के लिए हम लोग शेड्यूल देखते थे और शेड्यूल के पॉइंट को ड्रॉ करते थे, याद है? शेड्यूल में एक एग्जांपल याद दिलाता हूं, प्राइस एंड डिमांड। ओके, प्राइस 1 2 3 4 5 ऐसे आपने शेड्यूल देखा था। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 1 रुपीस, सपोज क्वांटिटी डिमांड इज 50 kg, प्राइस राइज तो वी बाय लेस क्वांटिटी, this is called demand schedule। And when we plot this demand schedule on the graph paper we get one diagrammatic representation curve, that curve is called demand curve। ये आपको सबको मालूम है। ओके, तो प्राइस इज अप 1 2 3 4 5 ऐसा अगर आप लिखते थे, फिर हम लोग रिकॉल कर रहे हैं आपके लिए 10 20 30 40 50 ऐसा आप लोग करते थे। प्राइस इज 1 रुपीस, क्वांटिटी डिमांड इज 15 यूनिट, तो यू गेट दिस पॉइंट, then 40 unit you get this point, then 3 rupees per 20 so you get this point, 4 rupees 20 and 5 rupees per 10। if you join all these points on the graph paper you get one curve that is called demand curve। this is the demand curve। तो अगर आपको कोई पूछता है डिमांड कर्व क्या है, तो डिमांड कर्व इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो आपको मालूम है कि डिमांड कर्व कैसे बनता है। उसी बेसिस पे आज मैं यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 नहीं लिख रहा हूँ, मैं प्राइस इज ओपी और ऐसी लैंग्वेज में लिखने वाला हूँ। ओके, सपोज ओरिजिनल प्राइस इज ओपी। ओके, एट दैट टाइम आपने डिमांड किया ओएम क्वांटिटी या ओक्यू क्वांटिटी, हम क्यू लिखते हैं, क्यू फॉर क्वांटिटी। ओके, प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी डिमांड इज ओक्यू, तो यू गेट दिस पॉइंट लाइक दिस, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ओके, तो मैं इस तरह आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट में ड्रॉ करता हूँ। When price is original price is OP, quantity demand is OQ। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ when price fall and demand rise, that type of rise in demand is called expansion of demand। Price is OP, quantity demand is OQ, price fall from OP to OP1। प्राइस कम हो गया तो जनरली पीपल बाय मोर क्वांटिटी, मोर मतलब आपने OQ क्वांटिटी परचेज किया, तो वी गेट दिस पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यू गेट दिस पॉइंट। तो इफ यू जॉइन दिस टू पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर स्ट्रेटली आपको स्केल से ड्रॉ करने का है, तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो यू गेट दिस कर्व, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ये आपको डिमांड कर्व मिला। तो आपने नोटिस किया प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड इज ओक्यू। व्हेन प्राइस फॉल फ्रॉम ओपी टू ओपी1, डिमांड राइज फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू1, that type of rise in demand is called expansion of demand, because original quantity purchased by you is OQ quantity, now you buy OQ1 quantity, so how much expansion in demand take place? QQ1 quantity से demand ज्यादा हो गया है। यहाँ पे आप increase decrease वर्ड यूज नहीं कर सकते, because in case of expansion and contraction of demand you have to राइट चेंज इन प्राइस, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन डिमांड क्या बोल रहा है कि राइज और फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ change in price alone is called variation in demand, and there are two type of variation, expansion of demand and contraction of demand। तो expansion demand का definition क्या मैंने बराबर ऐड करा है, rise in demand because of fall in price alone, other factor remain constant is called expansion of demand। Second definition, fall in demand because of rise in price alone, other factor remain constant, that is called contraction demand। अब याद रखो यहाँ पे rise and fall हम लोग बोल रहे हैं due to change in price of that commodity itself बोल रहे हैं। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पे expansion को आपने प्रूव किया। यहाँ पे आपने नोटिस किया original point A is here, new point B is here, तो here there is this movement is called downward movement। here expansion of demand में क्या हो रहा है, there is a downward movement of point, downward movement of point from A to B। ऐसा आपको fill in the blanks में पूछ सकता है। तो if you want to write
शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन, तो इसको सबको ज्वाइन करना है। इफ यू वांट टू राइट डिस्टिंग्विश टाइप क्वेश्चन, तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, इस तरह लिखना है, सेकंड पॉइंट डायग्राम, देन थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने जो ये बोला वही लिखना है। क्या बोला है? ओरिजिनल प्राइस इज ओपी, then original quantity demand is OQ. When price fall from OP to OP1, quantity demand rise from OQ to OQ1. Here expansion of demand by QQ1 quantity, and in this case there is a downward movement of point from A to B on the same demand curve. If you want to write contraction demand, तो definition क्या है? Fall in demand because of rising price alone is called contraction of demand. This is better explained with the help of diagram, और फिर आपको डायग्राम बनाने का है। Same type of diagram, but क्या लिखना है? Fall in demand because of rising price alone, तो original price is here and original quantity demand is OQ. Okay, but when price rise from OP to OP1, generally जब price बढ़ता है तो we buy more quantity or less quantity, तो आप सबको मालूम है price rise we buy less quantity, less means we write here, तो we get this point। तो मैं आपको जानबूझ के इस तरह ऐसा बता रहा हूँ। तो फर्स्ट you get this point, then you get this point, and if you join these 2 point on the graph paper, this is demand curve। तो original point is A, new point is B, there is a upward movement of point and there is a contraction of demand। यहाँ से यहाँ पे आ गए। ये अगर आप ध्यान से देखो, नोटिस करो, सब कुछ सेम टू सेम है, डायग्राम सेम है, ओनली मैंने नेम चेंज किया है। Original price is OP. Here original price is OP here. Price fall, price fall. Price fall तो demand rise. Here price rise तो demand fall. देखो बड़ा ध्यान से, only डायग्राम में नाम चेंज करते हैं तो हम लोग को दूसरा सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मिल जाता है। ओके, नाउ डेफिनेशन समझ गया है, एकदम इमीडिएट आप लोग बोल सकते हो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो फॉलिंग डिमांड बिकॉज़ ऑफ राइजिंग प्राइस अलोन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दिस इज बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और डायग्राम आपको बनाने का है एंड देन यू हैव टू राइट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में फिर से यही बोलने का है, व्हेन द प्राइस इज ओपी क्वांटिटी डिमांड इज ओक्यू, दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, बट व्हेन प्राइस राइज फ्रॉम ओपी टू ओपी1, quantity demand fall from OQ to OQ1, hence there is a contraction of demand by QQ1 quantity। आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन करने का है और लास्ट में बताने का है, in this case there is a upward movement of point from A to B on the same demand curve। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ था, पहले हम इधर थे, बाद में इधर आ गए, क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी हमने खरीदा था तो हमें ये पॉइंट दिखाई दिया, न्यू क्वांटिटी में आपको ये पॉइंट मिलता है, तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पॉइंट एंड हियर ओरिजिनल क्वांटिटी ओनली P लिखा है, दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, दिस इज द ओरिजिनल क्वांटिटी इज द OQ एंड न्यू प्राइस इज OP1 एंड न्यू क्वांटिटी डिमांड इज OQ1। तो यहाँ पे आपने देखा कि अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपको परफेक्ट समझ गया होगा। तो हियर व्हाट इज अ वेरिएशन इन डिमांड, अगर आपको कोई पूछता है वेरिएशन डिमांड टेक place because of what, so variation in demand means rise or fall in demand because of change in price of commodity alone, other factor remain constant। यहाँ पे rise और fall in demand हो रहा है because of only price of that product। okay, now what do you mean by increase in demand and decrease in demand? same to same है लेकिन थोड़ा सा changes है। increase and decrease को हम changes बोलते हैं। So what are the causes of changes in demand? Changes in demand take place because of factors other than price, and variation in demand takes place because of factor price। यहाँ पे demand rise और fall हो रहा है because of price, और यहाँ पे demand rise और fall हो रहा है because of factor other than price। other than price मतलब इसको छोड़ के ये सभी फैक्टर के कारण अगर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंज होता है तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंजेस, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। आपको समझ गया होगा, यहाँ पे डिमांड जो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस, और यहाँ पे जो डिमांड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस। तो फिर आप बोलेंगे इधर P क्यों लिखा है, जरा ध्यान से मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखने का तरीका है। देखो, राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस, मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ओके, ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, राइज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस, दैट्स व्हाई मैंने इसको क्रॉस किया है। ओके,
check करो difference. Here is also rising demand. Here is also rising demand. But here rising demand because of falling price alone. This is called expansion. But here rising demand because of factor other than price. कभी-कभी क्या होता है कि demand of the commodity rise हो जाता है, बढ़ जाता है because of some other factor. Because of suppose income of the consumer, आपके पापा का income डबल हो गया तो आप ज्यादा परचेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड. उसको हम लोग एक्सपांशन डिमांड नहीं बोलेंगे बिकॉज हियर राइजिंग डिमांड टेक प्लेस बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस. जरा ध्यान से देखो, अगर इस हाथ को मैं लेफ्ट हैंड को प्राइस बोलता हूँ, इसको डिमांड बोलता हूँ और मैं ये डेफिनेशन इंक्रीज इन डिमांड सिखा रहा हूँ. ओके, तो राइजिंग डिमांड बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस. अदर देन प्राइस मतलब मैंने प्राइस को हिलाया नहीं, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ तो उसको हम लोग इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं. एंड दैट फैक्टर मे बी आउट ऑफ दिस फैक्टर. कोई भी फैक्टर के कारण कभी भी हो सकता है. सपोज राइज इन डिमांड ऑफ एसेंशियल कमोडिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. सपोज राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड. तो देख लो बराबर ध्यान से, मैं ये हाथ को हिला नहीं रहा हूं क्योंकि ये प्राइस को छोड़ के अदर देन प्राइस मैंने बोला है. ओके, नाउ दिस इज बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प डायग्राम. यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो कभी-कभी प्राइस सेम रहता है तो भी हम ज्यादा प्रोडक्ट को खरीदते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन अदर देन प्राइस. ओके, तो दिस इज बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सपोज प्राइस इज ओपी. ओके, इन दैट केस वी बाय ओक्यू क्वांटिटी. अगर मैं प्राइस इतना और इतना खरीदता हूं तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है. ठीक है, and if there this is a demand curve. How you draw demand curve? सबको मालूम है demand curve it is a graphical representation of demand schedule. ऐसे schedule को मैं अगर ग्राफ पेपर पे बनाता तो demand schedule है, उसमें से एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सपोज इसको मैं OP बोल रहा हूँ, इसको Q लिख रहा हूँ, OP OQ ऐसा लिख के मैं समझा रहा हूँ. Okay, there are various points on the demand curve. Out of that मैं एक particular price पे डिस्कस कर रहा हूँ. इसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, मैंने डायरेक्ट डिमांड कर्व बना दिया. ओके, जनरली डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई वी कैन ड्रॉ लाइक दिस ए डायग्राम. ओके, so that means this is the current situation. मुझे ये एक्सप्लेन करने का है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग डिमांड, ये मैं बता रहा हूँ. तो हियर द प्राइस इज OP, then the original quantity demand is OQ. But sometime at same price we buy more quantity. कभी-कभी प्राइस चेंज नहीं होता है प्रोडक्ट का, लेकिन तो भी हम ज्यादा खरीदते हैं बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर. मैंने क्रॉस किया बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस. दैट फैक्टर में भी आउट ऑफ दिस कोई भी फैक्टर हो सकता है. अचानक किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा और बहुत अच्छा लगा. ओके, अमिताभ बच्चन जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर में एंटर हो गए तो घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर का रेट तो प्राइस तो सेम होगा लेकिन उसका डिमांड क्या है, इंक्रीज हो गया. वो बात को समझाने का है. तो दिस इज द प्राइस ऑफ घड़ी डिटर्जेंट. प्रीवियसली डिमांड इज OQ क्वांटिटी बट एट द सेम टाइम नाउ वी बाय मोर क्वांटिटी. तो पब्लिक ज्यादा खरीदने लगी तो इतना मोर, ये हम लोग का आंसर बढ़ गया. तो हियर यू गेट दिस पॉइंट. तो इन दिस केस you get some new demand curve. ध्यान देना बराबर, यहाँ पे प्राइस सेम है, डिमांड राइज. तो यह डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू राइट हैंड साइड. बट यहाँ पे जो चेंज हो रहा था देख लो बराबर, दिस राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस. दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन डिमांड. हियर राइज इन डिमांड because of factor advertisement other than price. देखो प्राइस तो सेम रखा, मैंने चेंज ही नहीं किया. there is no change in price. here there is a change in price. तो here rise or fall take place because of change in price. here rise or fall take place not because of change in price, because of factor other than price. that's why definition में क्या लिखा है, rise in demand due to change in factor other than price. तो यहाँ पे प्राइस सेम है तो भी हमने ज्यादा खरीदा. तो मैंने अभी एक एडवर्टाइजमेंट एक एग्जांपल लिया, एडवर्टाइजमेंट. तो सम टाइम बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सम टाइम बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड हैबिट, सम टाइम बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऑल दिस फैक्टर डिटरमाइन डिमांड. ओके, तो राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड.
अगर आपको डिक्रीजिंग डिमांड बोलना है तो यही डेफिनेशन उल्टा है, फॉलिंग डिमांड बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस। तो डायग्राम सेम टू सेम है, ओनली नेम चेंज करूंगा। देख लो, सपोज प्राइस इज ओपी एंड डिमांड इज OQ, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो यू गेट दिस पॉइंट, इफ यू जॉइन दिस पॉइंट तो यू गेट दिस पॉइंट, तो हियर द ओरिजिनल डिमांड कर्व इज दिस, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, देयर आर वेरियस पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और इस प्राइस पे डिस्कस कर रहा हूँ। समटाइम एट द सेम प्राइस वी बाय लेस क्वांटिटी, कभी कभी क्या होता है प्राइस सेम होता है तो भी हम कम खरीदते हैं बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस। देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर पापा की इनकम कम हो गई तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा। तो इफ एट द सेम प्राइस you buy less quantity OQ1 then you get this point। तो पहले आप इतना इधर थे, बाद में आप इधर आ गए, तो here you get new point, तो here we write D1। अगर आप नोटिस करो, here original point is this and new point is this is horizontal movement and here demand curve is shifting to right hand side, your demand curve shift to the right side of the original demand curve। okay, जो original demand curve है उसको मैंने DD लिखा है, new demand curve is D1। यहाँ पे यही डायग्राम को मैं ओरिजिनल इधर रख रहा हूँ, मुझे डिक्रीज समझाने का, इसलिए मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ हूँ। ओके, तो your original is DD is the original demand curve, new demand curve is D1 and you get new point B and this is called decreasing demand। फोर डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से कंपेयर करो तो दिखता है सेम है, डायग्राम भी बहुत सारे मिलता जुलता है। इन केस ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डायग्राम सेम, यू हैव टू चेंज नेम। इन केस ऑफ इंक्रीज डिक्रीज डायग्राम सेम, नेम चेंज करने का है। ओके, नाउ डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो फुल आंसर अगर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तो ये शॉर्ट नोट हो जाएगा। यू हैव टू राइट 4 पॉइंट, मीनिंग, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम एंड देन रिलेशन, दैट इज मूवमेंट ऑफ पॉइंट, ये समझाने का है। तो आराम से ये शॉर्ट नोट कंप्लीट होता है जैसा कि टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ओके, तो फुल आंसर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीनिंग बोलना है चारों का, तो एक साथ ऐसे कैसे याद रखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड एंड इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपांशन डिमांड? राइजिंग डिमांड बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस अलोन इज कॉल्ड एक्सपांशन डिमांड एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। Falling demand because of rising price alone is called contraction of demand and other factor remain constant। मैं alone बोल रहा हूँ कि falling demand because of rising price alone। Okay, now here increasing demand means इसमें भी यही बोलने का है, rising demand because of factor other than price, और यहाँ पे बोलने का falling demand because of factor other than price such as all these factor, income of the consumer, size of population, etc etc etc। ये डेफिनेशन आपको लर्न हो गया होगा। नाउ दिस इज बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऐसा लिखने का एग्जाम है, दिस इज बेटर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दिस इज द मेथड ऑफ माइक्रो स्टडी। माइक्रो स्टडी में हमें कोई भी बात को समझाने का है तो स्केड्यूल एंड डायग्राम का यूज किया जाता है। ना डायग्राम बनाने का है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन करने का है। डायग्राम आपको समझ गया है? ओके, ऑन द सेम डिमांड कर्व देयर इज अ मूवमेंट ऑफ पॉइंट, हियर डिफरेंट डिमांड कर्व। इन केस ऑफ एक्सपांशन डाउनवर्ड मूवमेंट, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट मतलब पहले हम इधर थे बाद में इधर आए, पहले इधर थे बाद में इधर आए। ओके, तो यू गेट न्यू पॉइंट। नाउ इन केस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू राइट साइड। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी क्या है, आपको ये पूरा आपको लर्न हो गया होगा। जब हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड तो डिमांड कर्व हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, डिक्रीजिंग डिमांड, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यू हैव टू राइट योर आंसर with respect to following point, first meaning, then diagram, then explanation। okay, explanation जो दिखता है वही लिखना है, and movement of point। okay, this movement is called downward movement, this is called upward movement, this is called horizontal movement, and this is also called horizontal movement of point from A to B, but this movement is movement of point from A to B। due to this movement your demand curve is shifting to right hand side and your demand curve shifting to left hand side। ये जो मैं बोलता हूँ कुछ स्टूडेंट सुनते हैं लेकिन ध्यान से
सुनते ही नहीं है और लर्न नहीं करते हैं, और यही एग्जाम में आता है। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू डैश साइड, तो आपको राइट साइड लिखना है। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टू डैश साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड। इन केस ऑफ expansion and contraction, there is only movement of point on the same demand curve, but in case of increase and decrease, there is a shifting of demand curve from left to right and right to left। आपका लेफ्ट और राइट देखना, मेरा नहीं है। तो आपको ये परफेक्ट समझ गया होगा कि हाउ टू राइट डिस्टिंग्विश एंड हाउ टू राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स में ये सभी को ज्वाइन करो, और डिस्टिंग्विश में जैसा लिखा वैसा लिखने का है। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, सेकंड पॉइंट डायग्राम। डिस्टिंग्विश में डायग्राम बनाना है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर आपको परफेक्ट समझ गया होगा।